Public speaking, how it has changed through social media and digital platforms. पहले जिस तरह से पब्लिक स्पीकिंग होती थी और अब जो चेंजेस आए हैं वो क्या चेंजेस आप देख पा रहे हो? जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग अगर हम बोले तो पहले स्टेज पे होता था, माइक पे खड़े रहो, स्टेज पे बोलो. नाउ इट इज दिस रेक्टेंगल स्क्रीन. चाहे फोन ले लो, चाहे लैपटॉप ले लो, व्हेन यू टॉकिंग टू द कैमरा यू टॉकिंग टू पब्लिक. ऑफ कोर्स हमें ऐसा सिखाया गया है कि दूसरों के लिए जीना है, दूसरों का करना है, एडजस्ट कर लेना है, सब सहन कर लेना है. ये कंडीशनिंग गलत है. तो लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं सीईओ बन जाऊंगा या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो सक्सेसफुल होऊंगा. लेकिन अगर उन चैलेंजेस को पार कर लिए तो भी तो वो एक सक्सेस की परिभाषा है. बिल्कुल. जैसे आपने कहा छोटी छोटी विंस जो हमारे होते हैं कि आज नहीं मन कर रहा था मुझे जॉब पे जाने, पर मैं रेडी हुआ, मैं गया, मैंने काम किया, मैंने बेस्ट दिया. दैट्स अ सक्सेस. मोटिवेशन इज अ मिथ. बिल्कुल भी there is nothing which is called motivation. There is only one thing which is called action. Right. जो आप डिसिप्लिन बोलते हो या रेगुलर एक्शन बोलते हो. कोविड के टाइम पे देयर वर ऑनलाइन सेशंस. तो जो गांव में जो बच्चे जो खेत में काम करते थे वो पेड़ पे चढ़ के फोन का नेटवर्क पकड़ के भी मेरा सेशन सुनते थे. वो ऐसा बोलते थे कि मैम हमें कब मौका मिलेगा, अगर हम ये मौका जाने देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे. मंत्र है बेटी बचाओ. बेटी तब बचेगी जब बेटे को ठीक से सिखाओ. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक. दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन. मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग मोटिवेशन की बात करते हैं विच इज वेरी टेम्पररी, बट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज दैट वी शुड बी डिसिप्लिन्ड इन आवर ऑब्जेक्टिव. आज मैं ऐसे ही गेस्ट को बुलाया हूं जो कि इस बात की उदाहरण है. इन्होंने अपने काम से बहुत लोगों को प्रभावित किया है, बहुत लोगों को मोटिवेट किया है. इनका नाम है मेघना सोनी. ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं जिन्होंने बहुत साल से ये काम कर रहे हैं. कुछ 10 साल से ये इस काम में जुड़े हुए हैं. अगर मैं आपको ओवरऑल इनके जर्नी के बारे में बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर हम एक पॉडकास्ट के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी यूथ इंस्पायर हो इनके बात सुन के. सो ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए मैं ये पॉडकास्ट शुरू करना चाहूँगा. सो वेलकम मेघना. हाउ आर यू? वेरी वेल. So it is a pleasure to have you because it was a very strong motive that I wanted a person like you who has worked so hard in this field, because what is really important is to have a vision and work on that vision for a long time, and you are able to do it because it is really difficult. I can understand that. So please tell me about your journey, how you started with this work. If I can tell you this profession which I am in right now, public speaking or mentoring or personal development, I always say that I did not choose that, it chose me. Because I was from a very, very different field. I was from a creative background, did my fine arts and graphic designing, then transitioned into automobiles, worked almost 7-8 years in automobiles, sales and everything. And then suddenly in one of the automobile training, one of the trainer did tell me, I think your communication is very good. You should try into training and development. And that is exactly what stuck to me. I think it's your calling. When your work is like calling you or the profession which you meant to be. So I believe that this work which I do or this profession, it involves a lot of giving back to the society. A lot of fulfillment. And hence I tell you that it was my calling. So what challenges you have faced while doing this work? Challenges per se, because suddenly people are not going to consider you as an expert. So the start, it's not like if you are looking for a monetary reward, then suddenly you cannot gain it. Over a period of time, a lot of experience, your experience with coaching people, mentoring people, training people will put you in a position where you know that you are actually impacting lives. And that is when the monetary reward comes in. So that is a challenge, so that sometimes people have to do or balance multiple jobs, because this is your passion project, but something to run the house and to earn a living. So I think that is a challenging part, but otherwise it's the most gratifying profession ever. So Meghna, usually it so happens that traditionally we are facing a lot of issues socially, and we always
have issues with that, but nobody thinks of going ahead with some kind of change. And now if I ask you, how do you think that you can be different? Because there are many personality coaches earlier also. They have worked for a long time and did their bit. But how do you think that your work can be different? What your vision, your point of view is different from the people who were there in this vicinity? How you are different? See, I believe every individual has a different perspective of understanding other person. So for example, if I am helping somebody into communication training, the key points that I might observe and understand that the person is lacking might be different than another person's perspective, right? So that is a point which is always unique. And I have always been an observer. I observe people a lot in terms of, everything, their body language, the communication, the things they say or they don't say. So I know the loopholes and I know where and what is going to impact. So I think I call it my forte or my niche also. I'm not comparing myself with any other trainers saying that they might not be doing that. But that is how it has helped me in my work as of now. तो आपको ऐसी क्या चीजें स्ट्राइक करती है जो पहले होती आई है और जिस पे मतलब हमेशा से ही यू हैड अ फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी, एज इन यू फेल्ट कि इन चीजों में तो चेंज आना चाहिए पर कोई इस पे वर्क क्यों नहीं कर रहा? ऐसे कौन से कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा हर्टफुल फील होता है और यू वांट कि मेरे काम, आपके काम से इस चीज में बदलाव आ सकता हो? बहुत सारी चीजें होती है ऐसे, जैसे कि फर्स्ट एंड मेन पॉइंट इज कि पर्सनल डेवलपमेंट जब हम देते हैं, इट इज अ टॉपिक जब वो इंसान सोचता है कि भाई मेरा काम सेट हो जाए, अच्छी सी जॉब सेट हो जाए, घर में ठीक से पैसा आ गया है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचूंगा, राइट? जो मास्लोस पिरामिड जो हम सोचते हैं कि ऑल द बेसिक नीड्स जो हो जाती है उसके बाद हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते हैं। वो बात मुझे बहुत खटकती है कि अगर वो चीज आप पहले ही सोच लो, पर्सनल डेवलपमेंट अगर आप पहले ही सोच लो, तो आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो, आप हर एक चीज बेटर कर सकते हो, डबल हो जाती है। तो जो रोटी कपड़ा मकान, जो शेल्टर और जो बेसिक नीड है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सारी चीजें टेकन केयर हो जाती है व्हेन यू वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट एट द लास्ट कि भाई मैं सब कुछ कर लूंगा उसके बाद में अपने। तो वो टाइम कब आता है जब हम कोई इंसान 50-60 इयर्स का हो जाता है, तब एक माइंडसेट भी रिजिड हो जाती है कि मैंने तो इतनी दुनिया देख ली है। जब तुम्हारा माइंड बहुत रिसेप्टिव है, तब तुम बाकी सारे जो लाइफ की हसल है, स्ट्रगल है या रैट रेस, उसमें पड़ जाते हो एक्चुअली। सो आई फील कि इफ द वेरी बेस एंड स्कूल के जो, जैसे हम मैथमेटिक्स सिखाते, इंग्लिश सिखाते, जो बेस है कि भाई ये तो सीखना ही पड़ेगा, अल्फाबेट्स तो सीखने ही पड़ेंगे टू इवन गो टू द कॉलेज, राइट? सेम वुड बी लाइफ स्किल्स, कि ये स्किल्स तो आनी ही चाहिए टू ग्रेजुएट। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। एग्जैक्टली। So that and also making these skills very accessible to everybody. ऐसा नहीं कि only the rich can afford. वो रूरल पार्ट में भी बहुत ही अफोर्डेबल होने चाहिए, क्योंकि फिर इमेजिन कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी बेटर हो जाएगी। They'll get better job, they'll get better opportunities. The entire economy of the country gets better. So I feel taking a personal development in a very different perspective कि ये खाली टाइम पास या एक्स्ट्रा की चीज नहीं है, ये बेसिक, इट इज द बेसिक एंड इट इज एक्चुअली इट विल शेप द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, इट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलवेज लाइक टेकन इनटू कंसीडरेशन दैट इट मैटर्स द मोस्ट। जो टेक्निकल स्किल्स है, जो हार्ड स्किल्स है, हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये भी उतनी ही। तो एजुकेशन किस हद तक इस चीज को रोक रहा है? इंडिया में जिस तरह का करिकुलम है, जिस तरह की परवरिश माँ बाप बच्चों को कराते हैं और जो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, वो कितनी बाधा बन रही है इस काम में? See now, because there are a lot of schools with an IB background, right. तो जो इंटरनेशनल जो करिकुलम है उसमें ये सारी चीजें फिर भी इंटरवोवन है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल जस्ट गोज विद अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर में खाली वो फोकस होता है एकेडमिक्स पे, व्हिच इज इंग्लिश, मैथ्स,
व्हाटएवर जो उनके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको चेंज नहीं करना है, बिकॉज वो जो बदलाव है वो कैसे लाएंगे, वो कैसे सिखाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट कि भाई ये सारी चीज तो वो बड़े होंगे तब सीख लेंगे. So that thought has to change from the entire education system. Right. That this has to be in your curriculum for a child to graduate. Yeah, it should be important कि ये तो करना ही है. तभी you will pass. Yes. And what do you think about the fact कि जो parents हैं, जो teachers हैं, get too much focusing upon the marks और हमेशा ये कहते हैं कि एक comparison mode में हमेशा रहते हैं कि उस बच्चे का इतना ज़्यादा नंबर्स आए हैं, यू हैव टू बी अबव 90 मार्क्स, और दे डोंट इन द प्रोसेस दे डोंट ट्राई टू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है और क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि फ्यूचर में एजुकेशन से ज़्यादा तो स्किल्स मैटर करेगी. और हमेशा ये सिखाया जाता है कि आप फेलियर से डरो. लाइक एवरीबडी, इवन यू मस्ट हैव हर्ड कि सब यही कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब पालो, सेफ रहो. मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है लाइफ में कि लोग कोई एक छोटा सा काम करने में भी कतराते हैं. इवन आई हैव सीन प्लेसेस लाइक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई अगर अपन किसी होटल में भी जाते हैं तो इफ सपोज द रिसेप्शनिस्ट इज वांट्स टू से समथिंग टू द कोलीग and she is just 15 meters away from her, तो ऐसा नहीं होता कि she can even speak properly and कि उनको अपनी बात बता दें. she has to go close to her, उनके नजदीक जाके वो बात बोल पाते हैं. तो ये जो घबराहट है, ये घबराहट कहीं ना कहीं हमारे बचपन से लेके बड़े होने तक वो डेवलप हो जाती है. तो और स्कूल में भी ये नहीं बताया जाता है कि आप सवाल पूछो. सवाल पूछने के लिए अवॉइड ही किया जाता है कि अगर आपने एक सवाल से ज्यादा पूछ लिया तो टीचर भी नाराज हो जाते हैं, और घर में भी अगर सवाल पूछ ले तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं. तो ऐसा आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए? बिल्कुल. इनफैक्ट आई थिंक द माइंडसेट में चेंज आना चाहिए. एजुकेशन सिस्टम में तो धीरे धीरे बदलाव आएगा ही, बट बच्चा ज्यादातर तो घर पे ही रहता है. तो जो माइंडसेट है उसमें बदलाव की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कंपटीशन हेल्दी है, पर पूरा टाइम हर बार अगर तुम बच्चे को इतना कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस दे देते हैं पेरेंट्स कि भाई इतने मार्क्स नहीं आए, रिजल्ट ओरिएंटेड यस, बट नॉट एवरीथिंग इज रिजल्ट ड्रिवन ना. तो वो सारी चीजें जो थोड़ी थोड़ी पेरेंट्स को बदलाव लानी चाहिए कि भाई अप्रिशिएट किया है कि बच्चे ने जितना बेस्ट कर सका, बेटा आप और बेटर करना, पर इससे ज्यादा मार्क्स आए कि नहीं. भाई फलाना तुम्हारा दोस्त है, तो उससे ज्यादा अच्छा किया कि नहीं, कि उसको जॉब मिली तुम्हें मिली कि नहीं. तो उससे क्या हो जाता है कि नेचुरली वो जो बच्चे का ना सेल्फ एस्टीम हैम्पर हो जाता है. फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई सेफ बन के चलो, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो बेसिक फंक्शन ये है कि हमको प्रोटेक्ट करना है. तो वो सारी सिचुएशंस में से हमें प्रोटेक्ट करेंगे. जो सिचुएशंस उसको चाहिए कि इसमें खतरा है, इसमें ज्यादा स्ट्रेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें बोलेंगे नहीं करना है. That's why brain is like यही चीज है उसकी. Actually. तो अगर फैमिली भी स्ट्रेस दे रही है तो हमारा ब्रेन और ज्यादा वो जाता है कि नहीं बिल्कुल नहीं करना है, क्यों, हमें परेशानी लेनी है. सो आई थिंक वो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है. जो इंसान जो ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. खुद पे सेल्फ डाउट आने लगता है, हर एक चीज में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. बहुत सारी चीजें आगे जाके लाइफ में हैम्पर होती है. तो मेघना, जो आप कर रहे हो अपने कॉर्पोरेट में, लाइक वर्किंग सो हार्ड इन गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन क्लियर कि ये एक मिनिमम चीज है कि सबको इस चीज का अवेयरनेस क्रिएट करना. तो आर यू हैविंग एनी प्लान्स फॉर स्कूल्स आल्सो? आई हैव डन अ लॉट फॉर द स्कूल्स एज वेल. अच्छा. सो जो मेरे जिसमें मैं पैनल थी फॉर द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर लाइफ स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इन जनरल भी स्कूल्स के साथ टाई अप करके बहुत सारे ऐसे लाइफ स्किल्स प्रोग्राम्स भी किए हैं, जिसमें बच्चों को ये सारी चीजें जैसे सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, गोल सेटिंग है, इवन जो पब्लिक स्पीकिंग के जो सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं वो है,
इंटरपर्सनल स्किल्स है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें सिखाई हुई है। पर येट वो क्या हो जाता है कि एक ट्रेनर कितनी स्कूल्स को या 1 या 10 भी कितने ही स्कूल्स को कवर कर सके, कॉलेजेस को कवर कर सकेगी। व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम देन इट्स अ इट हैज टू बी समवेयर परमानेंट कि ये रेगुलरली हर बच्चे के साथ, हर बच्चे को मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आईबी बोर्ड तो ऐसा है जो कि ओनली रिच कैन अफोर्ड। एग्जैक्टली। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, जो नॉट सो, जिनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये स्किल्स सीखना। और अब टाइम आ गया है कि ये स्किल्स सीखने के लिए उस दिशा में काम करें। तो अगर सेल्फ टॉक की बात करें, हम नॉर्मली, मैंने जैसे ये पॉडकास्ट भी शुरू किया तो इसका मकसद यही था कि एक सिंपल नोशन ऑडियंस तक पहुंचाई जाए कि मोटिवेशन से बड़ा है डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन तो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन अपन एक टाइम के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, या तो सोसाइटी हमें दबाव में डाल देती है, या हम खुद अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो डेली बेसिस पे मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियसली आपकी भी लाइफ में भी आते होंगे डिफिकल्ट टाइम्स, सो हाउ डू यू रिमेन मोटिवेटेड इन योर टफ टाइम्स? सो आई ऑलवेज से मोटिवेशन इज अ मिथ। बिल्कुल भी there is nothing which is called motivation, there is only one thing which is called action, right? जो आप discipline बोलते हो या regular action बोलते हो कि ये करना ही है, right? So when it becomes, why routine has been stretched so much कि ये सुबह उठ के ये करना, ये करना, ये करना, स्कूल से भी हम रूटीन एक रेगुलर चीज करते हैं। रीजन इज दिस कि लॉट ऑफ टाइम्स वी फील लो, वो लो चीज को टैकल कैसे कर सकते हैं? एक्शन। जो टाइप की नेगेटिव फीलिंग आती है, अगर हम कोई एक्शन लेने लगते हैं, इंस्टेंटली हमारी वो फीलिंग चेंज हो जाती है। हर एक चीज का एक आंसर है, वो है एक्शन। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट द बॉडी कीप्स हैज अ मूवमेंट, द ब्रेन जो है उसका फोकस वो एक्शन पे चला जाता है, तो वो फीलिंग से हट जाता है। सो डीमोटिवेट ना होके मोटिवेट रहने का एक ही आंसर है कि टेक सम एक्शन। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी कुकिंग, इट कुड बी क्लीनिंग, इट कुड बी वॉकिंग, इट कुड बी any action, right? Anything which can keep you going. Yes, absolutely. उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपका गोल है कि आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपको डेली क्रिकेट ही खेलना है। You can even work towards your own benefit. Absolutely. Exercise कर सकते हैं, staying fit and even gaining knowledge. Absolutely. क्योंकि knowledge और skill ही foundation है to get things which are important. Very true. So, आपके जीवन में ऐसा कोई टाइम आया जब आप कह सकते हो कि ये आपके जीवन का टर्निंग मोमेंट था, when your thoughts start changing, बहुत पॉजिटिव दिशा में आप सोचने लग गए? So I feel moment I started working on this profession, I felt so my first turning point was when I was actually doing this entire training का to be a NABET accredited trainer, मेरा certification जो चल रहा था, वो टाइम पे गवर्नमेंट अनाउंस दैट दे आर लुकिंग फॉर ट्रेनर्स पैन इंडिया, ये प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें वो लाइफ स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इम्पार्ट करेंगे अलग अलग जगह पे। एंड आई हैड अपीयर्ड फॉर दैट इंटरव्यू, ओवर 300 trainers, I was among the few who were selected. And I started imparting that training in lot of government colleges and all of that. The moment when I actually used to train, and जो वो मोमेंट ऐसा था जब वो बच्चे थे कि उनके लिए वो नॉलेज बहुत नया था। कोविड के टाइम पे देयर वर ऑनलाइन सेशंस, तो जो गांव में जो बच्चे जो खेत में काम करते थे, वो पेड़ पे चढ़ के फोन का नेटवर्क पकड़ के भी मेरा सेशन सुनते थे। वो ऐसा बोलते थे कि मैम हमें कब मौका मिलेगा, अगर हम ये मौका जाने देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो मुझे मेरा मोमेंट था जब मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मे बी आई एम इन द राइट डायरेक्शन, इट्स वेरी फुलफिलिंग। तुम किसी की लाइफ में एक छोटा सा भी बदलाव ला रहे हो। हम हमारा घर चलाने के लिए जो पैसे कमाते हैं, हमारा घर चलाने के लिए करते हैं, राइट? हाँ, ये प्रोफेशन में मैं कितने और घर अच्छे से चल सके, वो अच्छे से कमा सके, I'm working towards that, to making so many households happy, financially, free and all of that. So I think that feeling was so satisfying. I think that was my turning point to मैं बोल सकती हूँ. So what has been your magical moment, as in something which you cherish forever?
बहुत सारे हैं, अगेन रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज ओनली. आई वर्क वेरी क्लोजली विद दिस एज ग्रुप जो मैं बोलती हूँ कि जब वो कॉलेज से ट्रांजिशन होते हैं कॉर्पोरेट में, मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हूँ वो एज ग्रुप को भी. सो मैं जब ऐसे एक बार चल के जा रही थी ना वेरी बिग बिल्डिंग जहाँ बहुत सारे कॉर्पोरेट थे, पीछे से मुझे आवाज आई मैम मैम मैम, एंड मैंने पीछे टर्न किया एंड एक बच्चा लड़का जो था वो दौड़ के आया यूनिफॉर्म में, पहचाना आपने मुझे, पहचाना? एंड आई वाज लाइक नहीं. तो बोलते मैं एक गांव में था, मैं इनका बेटा, वो कोई बहुत ही अंडर प्रिविलेज हाउस होल्ड से आता था, एंड अभी मुझे आपने जो इंटरव्यू स्किल्स सिखाए उसमें मुझे ये कंपनी में जॉब मिल गई है मैम, अब मैं सिटी में आ गया हूँ. तो मेरे लिए वो इतना स्पेशल था वो मोमेंट कि इसकी नहीं उसके पूरे फैमिली का फ्यूचर चेंज हो गया है. It's a noble thing to do. Yes. So that was like moments like these are my aha moments कि वो वाओ कि इसके लिए तो कर रहे हैं. Of course. और बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है क्योंकि काफी लोग सिर्फ एक रोबोटिक फैशन में लाइफ को जी रहे हैं, 10 to 6 की ड्यूटी कर रहे हैं, but they are trying to help themselves or their family, but you are able to help even the society. Exactly. So yeah. So if I ask you like difficulty like as an anchor or as a presenter, सबसे ज्यादा क्या डिफिकल्टी आती है या क्या स्किल्स किसी को सीखने चाहिए अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है? सबसे बड़ा स्किल फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू बी एन एंकर इज पेशेंस. Yeah. Believe me, being a coach and a trainer is easy than being an anchor. I'm saying this, but because see that profession, you are the end product. जो आप बोलते हो वो सब मानेंगे, उसके लिए grateful रहेंगे, करेंगे. Anchor is never an end product. आप ये हर एक जो प्रोग्राम है जैसे कि जो इवेंट से उसको लिंक कर रहे हो, आप एक कड़ी हो, एक लिंक हो सारी चीजों को अच्छे से फ्लो में करने के लिए. तो वो चीज के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है, चलो जो एंड जो आने वाला है प्रोडक्ट वो देर से आया है, या जो ऑडियंस है वो ठीक से आपसे कनेक्ट हो रही है कि नहीं, या जो ब्राइड और द ग्रूम है जिसकी इवेंट है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब मल्टीपल एक टाइम पे बहुत सारी चीजों को आपको एंगेज करना है. It's a holistic thing to do. हाँ, तो वो चीज में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है. So public speaking, how it has changed through social media and digital platforms. पहले जिस तरह से पब्लिक स्पीकिंग होती थी और अब जो चेंजेस आए हैं वो क्या चेंजेस आप देख पा रहे हो? जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग अगर हम बोले तो पहले स्टेज पे होता था, माइक पे खड़े रहो, स्टेज पे बोलो. नाउ इट इज दिस रेक्टेंगल स्क्रीन, चाहे फोन ले लो चाहे लैपटॉप ले लो, when you're talking to the camera you're talking to public. Of course. So now you have more options. Absolutely, you have. So I think now public speaking is defined that you don't need public to even do public speaking. हाँ right. आप फिर भी पब्लिक को कनेक्ट कर ही रहे हो. हाँ right. Could be millions. हाँ of course. Even if you are having a gathering, then also still there's a limit. Yeah. But digital platform is. Yeah, exactly. But at that moment, while you are actually connecting, you might not see a single person, but yet it is public speaking. So that is a big change now. Of course. So, अगर फ्यूचर प्लान्स आपका पूछा जाए कि आप आगे क्या चाहते हैं, आप अपने इस विजन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो क्या रहेगा आपका फ्यूचर प्लान क्या है? So again. I am starting my podcast which is Success Simplified, where I want to showcase a lot of stories. Let's just say every individual struggles, their failures, their resilience, how they bounce back, everything, their journeys, and explain that how it's never just an end goal, but the entire journey. तो बहुत सारी journeys के through I think मुझे audience तक लेकर आना है कि भाई ये होता है सक्सेस. This is how simplified it is because we are running and chasing toward that one goal which is success. Right. And I believe that in any capacity, be it personal development, be it public speaking, be it personal branding, कुछ भी जहाँ मैं किसी इंसान को बेहतर होने के लिए हेल्प कर रही हूँ, वो मेरा मिशन है.
making as many people live their life better. True. Could be in terms of life skills, employability skills, relations, whichever ways. So and of course they would want to do better. Growth एक end factor रहता है, तो वो growth अगर आप define कर रहे हो तो हर एक छोटी मूवमेंट जो आपकी जर्नी है वो भी आपको एंजॉय करनी है, और वो तभी महसूस कर पाएंगे जब बहुत सारे जो ऐसे एक्चुअल अचीवर्स है उनकी स्टोरीज वो जानेंगे. True. What I really liked about your entire mission is that you have simplified the definition of success. Yes. क्योंकि like if we talk about simplifying the success is like जो हमें डाउट होते हैं डेली बेसिस पे उस पे कोई क्लैप नहीं करता, उसको अगर अपन जीत जाते हैं. बिल्कुल. और अगर डेली जो मशक्कत अपन करते हैं अपने माइंड के साथ और फिर एक्शन लेते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता. और जो फेलियर्स से आगे बढ़ते हैं हम, या फिर फेलियर्स के साथ आगे नहीं भी बढ़ते तो भी वो अगर उस चीज को परसिस्टेंटली डील कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ सक्सेस. 100%. सो नाउ redefining the definition of success is thanks to you. But do you give credit to some other source, or it came to your mind while working? So I think it's a process. I honestly don't have anybody to give credit to. I'm not giving it to myself also, but it's a process where I understood that what everyone is just chasing. Because in psychology there's a word which we call hedonic treadmill. जिसमें ऐसा होता है कि भाई एक तुमने सोचा कि मैं ये अचीव करूंगा अब तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या मैं खुश हो जाऊंगा, मैं हैप्पी हो जाऊंगा. वो चीज होने के बाद तुम खुश नहीं होते हो. तुम्हें और कुछ चाहिए होता है, और तब तुम्हें ऐसा लगता है यार ये तो मैंने सोचा था कि मैं सक्सेसफुल फील करूंगा, तो फीलिंग तो आई नहीं. तो वो फीलिंग क्यों नहीं आई? क्योंकि जो जर्नी थी वो थी आपकी सक्सेस जर्नी. राइट. जो मुझे लोगों तक पहुंचाना है वो तभी पहुंच सकता है जो हर एक अलग अलग इंसान अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. आई मस्ट से इट इज अ वेरी वैलिड कॉन्सेप्ट, बिकॉज देखा जाए तो लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं सीईओ बन जाऊंगा या मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो सक्सेसफुल होऊंगा. Exactly. लेकिन अगर उन चैलेंजेस को पार कर लिए तो भी तो वो एक सक्सेस की परिभाषा है. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे आपने कहा छोटी छोटी विंस जो हमारे होते हैं कि आज नहीं मन कर रहा था मुझे जॉब पे जाने का, पर मैं रेडी हुआ, मैं गया, मैंने काम किया, मैंने बेस्ट दिया. दैट्स अ सक्सेस. वो छोटा सा विन भी तो विन हुआ. So do you think that after working so hard for a long time and giving joy to so many people, do you find joy for yourself कि मैं ये चीज को जीवन भर कर सकती हूँ, और you are getting the inner happiness out of it? बिल्कुल. I think happiness और joy is such a thing कि जितना ज्यादा देते हो उससे डबल मिलता है. Right. It is helping others. बिल्कुल. और वो इतना it just comes back. I don't know what you call a circle of life or whichever way, but it definitely comes tenfold. So seeing कि भाई तुम्हारे वजह से कोई के इंसान के चेहरे पे एक मुस्कान आई है, उससे भी इंसान को खुशी हो जाती है. तो यहाँ तो जिंदगी बदल जाती है. एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि नॉलेज और स्किल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आगे रिसोर्सेज और नेटवर्क और रेपुटेशन मिलती है, तो हम बहुत बार चेज करते हैं रेपुटेशन को, नेटवर्क को, और नॉलेज और स्किल्स पे वर्क नहीं करते जो कि फाउंडेशन है. इनफैक्ट अगर नॉलेज और स्किल पे काम कर ले तो ये चीज़ें सप्लीमेंट्री आनी ही आनी है. सो मेघना, आपके पेरेंट्स से आपने क्या सीखा? Again, मेरे parents, so I come from a very humble background, and I think the best quality what they have taught me is to have patience, have faith, believe. So I think वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत instill हो गया कि हो जाएगा, भरोसा रखो. And even with good नीयत अगर करते हैं तब चीजें सब सही हो जाती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. So कभी कभी हम है ना बहुत ही, because even in this world where we want हर एक result फटाफट आए. हाँ. In this digital world where instant gratification is wanted, मुझे ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, इसका रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आ रहा है. तो वो मोमेंट पे आई थिंक मेरा जो फैमिली है मुझे ग्राउंडेड रखता है कि हो जाएगा, लेकिन हर एक चीज अपने सही वक्त पे होती है.
राइट, जो जैसे यूनिवर्स प्लान कर रही होती है, तैयार कर रही होती है आपको। सो अगर पॉडकास्ट नहीं होता या ये लाइन नहीं होती जिस लाइन में आप हैं, तो आप कौन सी लाइन चुनते? कोई क्रिएटिव फील्ड में ही होती, जैसे मैं जो कर रही थी इनटू हाँ। माय एडवर्टाइजिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हिच आई स्टिल डू. I still have a firm which runs advertising and social media and all of that. I think that creative part of me will always be there. Because obviously if somebody is creative, then only one can get into this kind of noble thing. Otherwise ऐसा possible होता नहीं है, क्योंकि इस तरह की qualities होनी चाहिए. So आप अगर बहुत डिफिकल्ट मोमेंट अगर आपका पूछा जाए कि आपने जब कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन व्हाइल पब्लिक स्पीकिंग, ऐसा कोई मोमेंट आया? डिफिकल्ट मोमेंट्स बहुत सारे होते हैं. शुरुआत जब की थी तब सो आई कम फ्रॉम अ प्लेस जब मैं पहले से ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं ऑलवेज कॉन्फिडेंट थी कि माइक के सामने बात. आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. आई हैड अ लॉट ऑफ स्टेज फियर. सो जो मेरा फर्स्ट जो टॉक बोल दो या ट्रेनिंग बोल दो या स्पीच बोल दो, आई हैड एक्सट्रीमली नर्वस. जो मैं नर्वस हो गई थी, हैंड्स फीट कोल्ड हो गए थे, टेरिबल स्टेज फियर. But then that one thought which I had anchored and it's still I anchor, and जो मुझे हमेशा अपने आप को ऐसे काम रखता है, वो ये है कि हम यूजुअली नर्वस इसलिए होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हमने कुछ गलत कर दिया तो ये इंसान किस तरह हमें जज करेंगे. उससे नर्वसनेस लिंक होती है. तो मेरा थॉट जो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहाँ, कि अगर जो सोचे तो सोचे, पर इनमें से अगर एक इंसान भी मेरी बात से कुछ अच्छा सुन ले और कर ले, तो मतलब वो रिस्क लेना है कि लोग जज करेंगे या लोग कुछ अच्छा सा तुमसे सीख कर जाएंगे. और एक चीज है कि नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का ना बॉडी सेम तरीके से रिएक्ट करता है. सो जब नर्वस होते हो तब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, जब बहुत एक्साइटेड होते हैं तभी इंसान का ऐसा हो जाता है. तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को ये बोलना है कि मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, तो वो शिफ्ट इंस्टेंटली आ जाता है. तो मैंने कहीं सुना था कि कर्तव्य सबसे ज्यादा बड़ा है सफलता से, और अगर चुनाव करना पड़े कर्तव्य और सफलता में, तो हमेशा कर्तव्य को करना चाहिए. तो हाउ मच यू रेजोनेट विद दिस पॉइंट? 100%. आई थिंक मान लो यू हैव अ सिचुएशन where you are getting something which you were aspiring for since a very long time, और वो ड्रीम मोमेंट आने ही वाला है आफ्टर लॉन्ग 20-30 years of effort. और उसी टाइम कोई ऐसा चीज भी है which drives you to get into maybe फैमिली में कोई चीज या फिर कुछ, तो उसमें आप क्या आप एक सही चुनाव कर पाएंगे? 100%. See, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कर्तव्य या जो भी बोलते हो, that comes always first for me. अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आपका काम अच्छा है, तो वो मौका फिर आ जाएगा. राइट. पर ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपको करनी ही है. सो अगेन, योर फेट, योर डेस्टिनी, nobody can take it from you. That is yours. So I would always choose the responsibility part first. तो एज अ वुमेन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो इस इंडस्ट्री में यू हैड टू फेस, और या एज वुमेन आर फेसिंग? कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको लगती है? I would not kind of discriminate this into gender. I don't think that there is anything. जितना in this industry, when you're talking about giving it out to the society involved, men and women both are respected equally. So I don't think that I have faced it. So if I put it other way, like कोई ऐसी प्रॉब्लम जो in the corporate world या फिर नौकरी करने में, और मे बी इन इंडिया, क्योंकि अब everybody is talking about feminism and everybody wants to be felt equally in terms of salary भी बराबर मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर मिलनी चाहिए. तो डू यू फील कि with women things are changing, और अभी भी प्रॉब्लम है? See, the problem with women is we want to do everything. That's the problem. अच्छा. Believe me. Now, earlier time it was good that work was divided. Men used to go out hunt, women used to cook. Fair division. सब अपना अपना अच्छे से कर लो. अब women hunt भी करेंगे और cook भी करेंगे.
तो हमारा काम तो डबल हो गया है, डबल हो गया, क्योंकि घर से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटनी नहीं है। हाँ, घर तो देखना ही है, तो पर काम भी करना है। काम भी करना है। तो ये मुझे लग रहा है फेमिनिज्म के चक्कर में हाँ, हमने हमारे पे ज्यादा काम कर लिया, नुकसान हो गया जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो गया है जरा। तो अगर मौका मिले तो will you try to get into the same shoes? See, I feel women are always born as nurturers. हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है? नर्चर करना है, क्योंकि that is how we are, right? I'm not against. I'm an independent woman. मैं खुद कमाती हूँ. I run my house and सब कुछ. I appreciate and encourage women like this. But I also appreciate and encourage all those women who are homemakers, who are taking care of the family. Because yes, that's exactly where what we are supposed to do. Why are we demeaning, और even उनको खुद को ऐसा लग रहा है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो हाउसवाइफ है। अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम तो वो कर ही रहे हैं, हाँ, उसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद ने अब खुद के ऊपर ले लिया है। हाँ, और एंड दूसरी चीज ये है which women don't understand, that we don't work like men physiologically. आपका हार्मोन सिस्टम हमारे जैसे नहीं होता है। आपका 24 आवर्स का साइकिल चलता है, हमारा थोड़े टाइम पे चेंज हो जाता है। तो हमारे मूड्स, हमारा जो फिजिकल जो इश्यूज होते हैं, सब चीजों में हमको प्रॉब्लम होती है। तो जब फिजियोलॉजी ही सेम नहीं है, तो हम कहाँ की कंपटीशन की बात ही कर रहे हैं। So अगर मौका मिलेगा तो you will ask the man to get partnered in this work, household work, या फिर you will think कि प्रोफेशनली जाने का इतना मतलब नहीं है, हाउस होल्ड जो काम करते थे वही ठीक है। नहीं, अभी वो बैक स्टेप तो हो नहीं सकता है। Now, not for you in general. No, I'm saying in general also now women has progressed so much and they do phenomenal in a lot of professional world. So I think it is high time where men also step down and कि भाई हम ज्यादा हाथ बटा लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज एक women अकेले नहीं कर सकती। Of course. And let's just say it's so easy for a man to just get ready in 5 minutes and just walk out. Even as an anchor, when I see a lot of my male colleagues or male anchors, उनको 10 मिनट लगती है। कुर्ता डालो, निकलो, फुल एनर्जी में, स्पोर्ट शूज में फुल एनर्जी करो। हमें क्या करना पड़ता है? हमें घंटों का मेकअप, हेयर, उसके ऊपर आउटफिट जो इतना भारी सा लहंगा, उस पे हील्स, और फिर वहां जाके लोग बोलते हैं एनर्जी दिखा। मतलब आप डिफरेंस समझो कि जब इतना सारा जो तामझाम है, वो अगर हम कुछ ना करें, नॉर्मली ऐसे लड़कों की जैसे आ जाए, तो वो चलेगा नहीं। बट डू यू थिंक कि ये आर्टिफिशियल ब्यूटी का कुछ टाइम से ही ऐसा बढ़ गया? नहीं, I don't think so. It has always been like this. So because women, it has to be like they have, set a benchmark. Appearance has to be very good. Yeah, it's a benchmark. So I think that is not to be changed, but I think the understanding and the approach towards it, that if a woman is out there in a profession and trying to juggle and balance things, कि family चला रही है, profession को देख रही है, तो थोड़ा उसको slack cut down करो, because you can't compare her with a man doing it because he is literally doing half the job. खुद के ऊपर भी देख लो या family के ऊपर भी देख लो. So every working woman is like taking care of the family in general, or have to ना, or मतलब आप सोचो, it is with few women only जो जिनको दोनों करना पड़ रहा है, और बाकी they are dependent on the households. No, I mean of course household help मिल गई है तो वो additional है, but nevertheless if you have a family हर एक, मतलब it could be your parents, could be your husband, could be your children, could be your brother, sister, whoever. Unlike men, we are very emotional driven. तो हम वो फैमिली को छोड़ नहीं सकेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरा काम प्रायोरिटी, तुम अपना देख लो करके हम निकल जाए। हम उनके लिए उतना ही करेंगे, फिर काम के लिए करेंगे, फिर खुद को रखेंगे। तो ये सारे चक्कर में, हमारे सारे टू डू लिस्ट में हम खुद के लिए हमारा टाइम निकल जाता है। तो मैं यही चीज, मतलब ये लिटरली आई वांट टू टेल टू ऑल द वुमेन आउट देयर, टू डू लिस्ट बनाना बंद करो, टू बी लिस्ट बना दो। कि मुझे ये बनना है, खुद के लिए जो वक्त निकालेंगे ना, मी टाइम, वो रहता ही नहीं ना। मी टाइम क्या, टाइम ही नहीं रहता। बट देन अगर उस तरह देखा जाए तो पहले के टाइम में हर औरत, जो हर महिला होती थी, वो अपने सैक्रिफाइस की मूर्त थी।
So they used to give like time to everything but not to themselves. And after 60 years, 70 years while doing all this, they used to feel कि अगर किसी कोई उससे पूछे कि आप खुश हो, तो यही कहते थे कि हम तो खुश नहीं है, क्योंकि कुछ अधूरापन इस तरह का हो जाता था कि वो घर संभालते थे और अपने आप को समय नहीं देते थे. Now things have changed कि वो जॉब भी करते हैं और घर भी संभालते हैं, तो एक बैलेंस हो गया. फिर भी अपने आप का टाइम नहीं दे रहे. तो व्हाट डू यू थिंक कि पहले का टाइम वैसे खराब था जब वो क्या है, कंडीशनिंग गलत हुई है. हमें ऐसा सिखाया गया है कि दूसरों के लिए जीना है, दूसरों का करना है, एडजस्ट कर लेना है, सब सहन कर लेना है. ये कंडीशनिंग गलत है. ये नहीं बचपन से सिखाया है कि भैया पहले खुद का देखो. जैसे हमें फ्लाइट पे बोलते हैं कि खुद के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क पहले लगाओ, फिर भले अपने बच्चे पे लगाओ. ये चीज नहीं सिखाते ना कोई कि भाई तुम्हें भूख, कि हर एक एवरी वुमेन ऐसा नहीं कि पहले पति को खिला दूं, पापा को खिला दूं, सबको खिला दूं, बच्चों को खिला दूं, फिर खाऊंगी. क्यों? पहले खुद खा लो, खुद पेट भर के शांति से खा लो, फिर क्या वो एनर्जी भी रहेगी ताकि आप दूसरों को खिला सको. तो मेरा सवाल ये है कि जब दोनों ही चीजों में शांति नहीं मिल रही, जब ट्रेडिशनली जो करते रहे हमेशा और खुद को जॉब में नहीं लेके गए तो भी दुखी, और अब जब बैलेंस कर रहे हैं तो इतना प्रेशर हो गया कि घर भी संभाल रहे तो वैसे दुखी. तो इस चीज का व्हाट इज द रेमेडी? The remedy is the world doesn't need to work on feminism. The world needs to work on raising men who can handle such kind of strong, independent women. उसमें क्या हो जाता है कि अभी ये जो मी टाइम हम बहुत इजीली बोल रहे हैं, अगर जब वुमेन मी टाइम लेने लगती है तो उनके घर के मेन वो देख नहीं पाते. तो पॉइंट यहाँ ये है कि ये इजी तब हो सकता है, चाहे वो ट्रेडिशनल वे ले लो या अभी कभी, कि जब वो तुम्हारा फैमिली सपोर्टिव हो, तुम्हारे फैमिली में मेजॉरिटी द मेल जेंडर जो है वो सपोर्टिव है कि ठीक है आज उसका खुद को कुछ नहीं करना है, उसको आराम करना है, या खुद के लिए करने का मन है, ये करना पड़ेगा उसके जीवन में, नहीं है ये नहीं करना चाहती है, कर सकेगी, या बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन मैं कर लूंगा. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मैंने किया है, मैं अपने काम से थका आया हूँ, ये जो वाला जो चीज है वो भले थकी आई हो तो नहीं कोई प्रॉब्लम, पर मैं थक के आया हूँ. तो वो कंडीशनिंग ना, वो पेरेंटिंग से लेके, चाहे तुम अपना बेटा हो या भाई हो या पति हो, जो भी हो, वो कंडीशनिंग चेंज करनी है. तो बेसिकली जो मंत्र है बेटी बचाओ, बेटी तब बचेगी जब बेटे को ठीक से सिखाओ. तो उसको थोड़ा बदलना चाहिए कि आप बेटे को पढ़ाओ, बेटे को समझाओ. बेटी बचेगी जब बेटे को समझाओ. तो इतनी कुछ बातें आप कह रहे हो कि विच इज ऑलवेज लाइक फीमेल के साथ गलत हुआ और मेल सपोर्ट नहीं करते. तो कुछ बातें ऐसी भी आती हैं कि जब एज अ फेमिनिज्म प्रोसेस अगर वुमेन आर वेरी इंडिपेंडेंट, वो बहुत ज्यादा कमाने लग जाते हैं, तो वो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो मेरी इनकम है, इट इज माई इनकम. और जब लेकिन मोस्टली मेन ऐसा नहीं कहते. मेन हमेशा इस चीज को होलिस्टिक तरीके से सोचते हैं कि इट इज इफ आई एम अर्निंग फॉर माई फैमिली. उनके मुंह से ये लाइन नहीं आती है, वो हमेशा यही कहेंगे कि मैं जो कमा रहा हूँ मेरे परिवार का है. लेकिन महिलाओं के मुंह से ये बात आ जाती है कि ये जो पैसा मैं कमा रही हूँ वो मेरा है. तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक जनरल चीज है या फिर एक ऐसे ही एक रूमर फैल गया है? नहीं, बिल्कुल सही बात है. सी अगेन मेन आर आल्सो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट मेन सैडली आर आल्सो फोर्स्ड टू प्रोवाइड. उनके पास ऑप्शन नहीं है कि घर चलाना ही है, फैमिली को प्रोवाइड करना ही है. चलो वुमेन के पास तो ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है. तो वो बचपन से क्या कंडीशन होते हैं कि भाई परिवार का ख्याल रखना ही है, पर उसका फाइनल से मेरा होगा, मैं अल्फा हूँ, मेरा डिसीजन चलेगा कि ये घर लेना है या इसके घर का सोफा बदलना है या ये करना है, करेंगे, पर मुझे बताओ, मैं डिसीजन लूंगा. भले वो पैसे से नहीं तोड़ते, पर डिसीजन मेकर खुद बच जाते. क्यों? Even with those females who are working. Yeah. So again, what happens कि because women never used to have that say at all. Men always had the say because they always used to earn.
तो जब अब वुमेन के पास से है, उनको जब रोक टोक किया जाता है जो हमेशा से जाता है, तब उनके मुंह से एकदम से निकलता है पर ये तो मेरे पैसे हैं, मैं कमाती हूँ, क्योंकि वो हमेशा से रोकी टोकी गई है ना। हाँ, सो बेसिकली इतने टाइम से जो डोमिनेंस हुआ है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो जो बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो अब वो रेवोल्यूशनरी हो रहा है। एग्जैक्टली, तो वो उनका वो आ जाता है। हाँ, अदरवाइज फीमेल्स आल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आप अपने एंड पे ये सोचते हैं कि ये चीज इस तरह से बैलेंस हो, तो आप ये भी मानते हैं क्या कि आदमियों को पढ़ाई के अलावा, जॉब के अलावा, मतलब ये जो दबाव आदमियों पे आ गया है कि दे हैव टू वर्क, कि वो ही सिंगल सोर्स, उनके पास ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो क्या आपको लगता है कि ये भी चेंज होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा भी होना चाहिए कि फीमेल्स को ये सिखाया जाए कि आपको भी फ्यूचर में घर भी संभालना है और जॉब भी करनी है और यू हैव टू रेज that is a very far-fetched thing. It is very impossible to change the entire notion. Yes, there are small changes in the slight steps that we can work on. थोड़ा बहुत मेंटल कंडीशनिंग धीरे धीरे चल होता जाता है। दैट अभी हम ये स्टेज पे आए थे, both the partners are contributing 50-50, but changing the entire notion of who is providing and who is nurturing, I think that's a long far-fetched idea. And secondly, it is also always said that the female is here to nurture. It is not that they मतलब उनकी प्रकृति ने पैदाइश ऐसा नहीं करी है कि they would be the source. तो प्रकृति से कैसे नाराजगी, प्रकृति तो वैसे ही नाराजगी हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, इतनी बिल्डिंग बन रही है, तो उसका रिएक्शन हम देख ही रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हुए हैं और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा, और क्योंकि रेलेवेंट टॉपिक्स थे इसलिए ये सारी बातें हुई। थैंक यू, आपने टाइम दिया और इतनी अच्छे मैसेज हमारे यूथ तक पहुंचाए। आई एम श्योर योर फीडबैक, योर इंस्पिरेशनल स्टोरी विल definitely motivate them and would like to allow them to stay disciplined. Thank you so much. Thank you. It was wonderful being on the podcast. I hope they actually have key takeaways. And all the best for your podcast. Thank you so much. Thank you. So, thank you audience. मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बातें हुई और आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा हमारा पॉडकास्ट। ऐसे ही हम पॉडकास्ट आगे भी लाते रहेंगे, कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसे ही गेस्ट आएंगे जो मोटिवेट भी करेंगे, अपनी स्टोरीज भी बताएंगे और कुछ ऐसा मैसेज पहुंचाएंगे आप तक जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। थैंक यू, आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, आगे भी देखते रहिएगा। थैंक यू।